कॉपी पेंसिल है ना? ओके so we were discussing our previous lecture was your pavement design. Okay, basically the flexible pavement design based on modified CBR method. Why modified? We will see there in apart from CBR we need some more data, okay, for calculating this pavement thickness. Okay, flexible pavement thickness, and the code which we are using is IRC code. Okay, IRC 37 is the code which is used for flexible pavement design, and this is this code. Okay, this one I have already provided in the Google Classroom. You have to follow guidelines from this code for designing the flexible pavement. Okay, today we will see how we will use this IRC code in order to design. So as I said that there are two parameters which we have to determine. First is your CBR value must be known to us, okay, or it will be provided to you in the question itself. Okay, and we in the previous class also we have discussed that how we can calculate CBR value. Okay, CBR is what? It signifies the strength of the subgrade soil. Okay, and there is another factor which we have to determine, or rather we can say which we have to calculate. Today we will see how we will calculate this value. Okay, and that is your capital N, and which is known as design traffic. Okay, design traffic in terms of cumulative number of standard Excel. See here, standard Excel term. Why? Because we are converting everything. We are designing in terms of standard Excel. We have to standardize the Excel load. Okay, Excel, you know, I think. See, as I said, this is the Excel. This is the wheel from the top view. This is the front Excel. This is the rear Excel. Okay, we have to know this Excel load. What is the load that is being applied to this axle, then from axle to the wheel, and from wheel to the pavement. Okay, so we have to count, we have to determine, or we can say we have to count the cumulative number of repetition of that axle load. Why? If there will be more number of loads, then that means what? More load will be applied to the pavement, okay, throughout its design life. So in order to sustain or in order to tackle those load, because of load what happens, तुम्हारे ऊपर अगर कोई किसी ने प्रेशर दिया, देता रहा, घर से प्रेशर है, कॉलेज का प्रेशर है, देता रहा तो क्या हो जाएगा? You will start to deteriorate. तुम मतलब टूट जाना स्टार्ट करोगे, राइट? मेंटली भी हो सकता है, स्ट्रेंथ फिजिकली भी हो सकता है, राइट? तो तुमको स्ट्रॉन्ग रहना है so that you can tackle those loads. ठीक है? अब कितना दिन तक तुमको रहना है? थ्रू आउट योर लाइफ, राइट? वैसे ही पेवमेंट का भी एक डिजाइन लाइफ होता है कि विद इन दैट डिजाइन लाइफ जितना भी लोड रिपीटेशन आता है उसको टैकल करना है विदाउट, मतलब फेलियर होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि टोटल फेलियर हो जाए, पेवमेंट ही पूरा फेल हो जाए, राइट? सो वही हमको चाहिए कि कितना रिपीटेटिव वे में क्यूमुलेटिव करना है. क्यूमुलेटिव का मतलब है सपोज आज 10 व्हीकल आया उस रास्ते पर, ठीक है, अब हम लोग तो सिर्फ डिजाइन लाइफ एक दिन का नहीं होता है, इट विल बी फॉर 20, 15 इयर्स, 20 इयर्स, राइट? तो 15 इयर्स, 20 इयर्स में कितना नंबर ऑफ डेज होता है, अब कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. अब नाउ थ्रू आउट दैट डिजाइन लाइफ what is the total cumulative number of repetition of the load which is being applied to the pavement, वो कैलकुलेट करना है. जैसे कि आज का दिन, आज से तुम कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, ठीक है, नहीं आज से तुम वो एक रास्ता को मतलब इनॉग्रेट करके बोलोगे ठीक है नाउ इट कैन बी यूज्ड बाय द ट्रैफिक, राइट? तो तुम रास्ता को खोल दिया तो क्या होगा? आज के दिन में सपोज 10 व्हीकल्स गया, नेक्स्ट डे सपोज 20 व्हीकल्स गया, तो ये 2 दिन में कितना क्यूमुलेटिव व्हीकल्स गया? आज 10 गया, कल 20 गया, ठीक है, तो टोटल 2 डेज में कितना? 30, राइट? तो वैसे हमको सम अप करते जाना क्यूमुलेटिव. अब थर्ड डे में इतना गया तो सोचो 20 इयर्स तक कितना व्हीकल्स जाएगा, ठीक है?
अब तुम बैठे बैठे, अब ये सब क्या है, ये सब तो फ्यूचर के बारे में है, राइट? तुम तो आज से कंसीडर, ये हो गया फ्यूचर में। अब इसका 20 इयर्स के बाद कितना ट्रैफिक जा सकता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम काउंट करते करते तो नहीं रहेंगे, राइट? वी हैव टू एज्यूम कि इतना रेट से ट्रैफिक ग्रोथ होता है एनुअली, राइट? इतना परसेंटेज, सपोज आज 100 है तो एनुअल अगर हम बोलेंगे 7% राइज होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर उसका कितना हो जाएगा, 107 व्हीकल्स वहां से जाएगा, ठीक है? तो ये सब हमको एज्यूम करना है, कितना ईयर के लिए करना है, थ्रू आउट इट्स डिजाइन लाइफ, ओके? अब इसमें देयर विल बी सम अदर फैक्टर्स आल्सो जो हमको ये कैलकुलेट करने में मदद चाहिए, जिसका हेल्प चाहिए हमको, राइट? तो ये जो डिजाइन ट्रैफिक है दैट इज कैपिटल एन, एंड वी नो दैट दिस कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या था? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस कैपिटल एन, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट we have to take into consideration? एक है कि स्टैंडर्ड एक्सेल लोड होना चाहिए, ठीक है? एक है ये कैपिटल ए, देखो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ओके? इट इज प्रोवाइडेड इन द IRC 37 itself, ओके? ये वाला जो फॉर्मूला है, देखो दिस वन, सब लोग को दिखाई दे रहा है ना फॉर्मूला? हाँ मैम, हाँ मैम। वेट, See, this is the formula. Now please note down this formula. तुम लोग के पास अभी कोड नहीं है तो अभी खुद कॉपी में लिख लो ये वाला फॉर्मूला, हमको प्रॉब्लम में चाहिएगा ये। सी कैपिटल एन, दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट CBR, हमको पता है, ठीक है? अब ये एन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है इस फॉर्मूला में देख लो। एक है देखो आर का टर्म है, ओके? दिस इज द ट्रैफिक ग्रोथ रेट, जो हम बोल रहे थे कि पर एनम कितना परसेंटेज ट्रैफिक राइज होगा, ग्रोथ करेगा, दैट इज आर, ओके? सिग्निफाइड डिनोटेड बाय स्मॉल 7। अच्छा, कौन स्टूडेंट फोरम, बोलो उसको ज्वाइन करने। बोला मैम। तो देखो आर इज व्हाट हम बोले थे, इफ नॉट प्रोवाइडेड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर? किसको याद है? एनीवन? शुभजीत, प्रोरेल, रूपम मित्रा, पूजन सिकदर या श्रीमोई? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर? ट्रैफिक ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए? अगर नहीं प्रोवाइड किया गया है, कंसीडर इट एज 7.5%, ओके? 7.5% मतलब कितना है? 0.075, तो यहाँ पे 0.075 बिठाना पड़ेगा इफ नॉट प्रोवाइडेड, ओके? वेयर स्मॉल n क्या है? हम बोले थे दिस वैल्यू इज फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी पीरियड, हाउ मच पीरियड? फॉर डिजाइन पीरियड, मतलब उसका डिजाइन लाइफ का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक आता है थ्रू आउट इट डिजाइन लाइफ। सो यहाँ पे एक n टर्म है which is signifies this, n is what? This is the number of design period, okay? Number of design periods in years अगर बोलेंगे तो, okay? So this is design period in year, उसका यूनिट है। अब ये a टर्म क्या है, d क्या है, f क्या है? I have already explained, फिर भी I will repeat, okay? A is what? A is the initial traffic in the year of completion of construction. Please remember ये initial traffic in the year of completion, मतलब सपोज 2020 में तुमने आज एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, पेवमेंट बनाना, ठीक है? उसको मिनिमम कितना, सपोज 3 to 4 years तो लगता है, एक ही दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा कंस्ट्रक्शन, राइट? इट विल टेक 3 to 4 years. सो अब आज के दिन में सपोज ट्रैफिक है तुम लोग का 1000 CVPD, मतलब कमर्शियल व्हीकल पर डे। कितना कमर्शियल व्हीकल पर डे उस रास्ते से जाता है आज के दिन में? 2020 ईयर में बोल रहे थे ऑन एवरेज 1000, ठीक है? अब वो कंस्ट्रक्शन कितना ईयर के लिए चल रहा है? से फॉर एग्जांपल 3 years, तो बोलो ये 3 years तक क्या सेम ट्रैफिक रहेगा? ना कि थोड़ा ज्यादा होगा, ना कि कम हो जाएगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये हम लोग बोले थे पर एनम ये कितना परसेंटेज बढ़ रहा है? 7% से बढ़ रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर। सो ए क्या है? ए इज दैट ट्रैफिक, मतलब कि आफ्टर 3 years वहां का ट्रैफिक कितना हो जाएगा? सो दैट इज ए, वेयर 1000 इज व्हाट? 1000 इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है? मतलब 2020 का ट्रैफिक कितना है? दैट इज पी, ठीक है? अगर उसका ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन सपोज विच इज x, अगर ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 3, ट्रैफिक ग्रोथ रेट अगर ये r है, तो फिर आफ्टर 3 years सपोज 1000 अभी 2020 में ये था 1000, तो आफ्टर 3 years सपोज 2023 में ट्रैफिक कितना होगा? दैट इज डिनोटेड बाय a. सो a विल इक्वल्स टू p, अभी कितना है? 1000 है,
आर है हम लोग एज्यूम किया 7%, एक्स इज 3 years, तो यहाँ पे 3 बिठेगा। ओके, तो अगर पुट करके जो भी वैल्यू आएगा दैट इज योर कैपिटल ए। सो यहाँ पे जो ए है वही है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये भी लिख लो। ए इज इक्वल्स टू क्या था, पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एक्स। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ओके, नोट डाउन किया सबने? प्लीज रेस्पॉन्ड। यस मैम। ओके, सी यस मैम। ठीक है। कभी कभी क्यों ये फॉर्मूला दिया है हमने, क्यों हम लोग डायरेक्ट ए का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि इन मेनी प्रॉब्लम, इन मेनी केसेस दे विल गिव यू दिस पी वैल्यू। ओके, and in that case you have to assume this x value and r value and you have to calculate a, फिर उसको यहाँ पे पुट करना है। otherwise in many cases they will give you direct a value. Okay, and the unit is what, commercial vehicle per day। हम लोग बोले थे जब भी डिजाइन करते हैं the vehicle, design vehicle which is used is the commercial vehicle, जिसका laden weight मतलब total gross weight should be 3 टन से ज्यादा होना चाहिए। Okay, now comes this D. D is what? This is the lane distribution factor. Now please note down this lane distribution factor. इसका दो केस होता है, एक होता है कि for single carriageway roads, ठीक है, और दूसरा है for dual carriageway road। तो ये वाला डायग्राम सपोज तुम टॉप व्यू से देख रहे हो। ओके, सिंगल कैरेजवे, देखो दिस इज द पेवमेंट, एक ही पेवमेंट है, ठीक है, बीच में कोई मीडियन नहीं है या बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, एक ही है, राइट। So this is single carriageway, this is also single, this is also single। लेकिन ये सिंगल कैरेजवे क्या है, सिंगल लेन, मतलब इसका विड्थ कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी विड्थ ऑफ वन लेन? एक लेन का विड्थ कितना होता है, एक रास्ते का लेन का? 3.5, राइट, 3.5 मीटर। तो ये विड्थ कितना है, 3.5 मीटर। अगर बोलेगा सिंगल कैरेजवे 2 लेन होगा तो क्या होगा, 3.5 प्लस 3.5 7 मीटर। सिंगल कैरेजवे 3 लेन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 3.5 इंटू 3, जैसे जैसे बढ़ेगा लेंस वैसे ही, ठीक है। पर दिस आर सिंगल लेन, ओके, सॉरी सिंगल कैरेजवे। अब आता है डुअल कैरेजवे, सी दिस इज डुअल कैरेजवे, ठीक है, मतलब कि दो कैरेजवे है, बीच में सेपरेशन या मीडियन जिसको बोलते हैं, जैसे हाईवेज में तुमको दिखाई देता है, राइट। सो दिस इज द मीडियन, राइट। तो दो कैरेजवे है, ठीक है। अब ये वाला कैसा है, यहाँ पे देखो एक कैरेजवे में 2 लेन है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, पर कैरेजवे में 2 लेन है। सो दिस इज डुअल कैरेजवे 2 लेन, डुअल कैरेज 2 लेन, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये भी देखो 2 कैरेजवे है लेकिन 3 लेन है, राइट। सो डुअल कैरेजवे 3 लेन। अब ये डिफरेंस हमको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में तुम लोग को ये क्राइटेरिया दिया रहेगा, ओके, कि डुअल कैरेजवे है या सिंगल कैरेजवे है या कितना लेन से, ये बोल देगा। एंड नाउ डिपेंडिंग अपॉन दोस क्राइटेरिया ये डी का वैल्यू वेरी करता है, ओके। तो देखो सिंगल कैरेजवे अगर बोलेगा तो डी का वैल्यू ये सब होगा 1.75, 0.64, ठीक है। किस किस के लिए क्या क्या है, देखो सिंगल कैरेजवे सिंगल लेन के लिए डी इज व्हाट 100%, which is 1, okay। for 2 लेन कितना होगा 75%, मतलब 0.75। for 3 लेन 60%, which is 0.6, and for 4 लेन which is 40%, 0.4। ये नोट डाउन कर दो सब लोग। सिंगल कैरेजवे लिखो ऊपर और लिखो सिंगल लेन का लिए है डी का वैल्यू 1, 2 लेन के लिए होगा, मतलब इसके इन दिस केस इट विल बी 0.75, in this case it will be 0.6, and in this case it will be 1। जैसे जैसे नंबर ऑफ लेन्स बढ़ेगा तुम्हारा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रिड्यूस होगा, ठीक है। ये नोट डाउन किया सबने? यस मैम। अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम समझाने जाएंगे, कुछ नहीं कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक लेन को कितना व्हीकल्स यूज करता है। सिंगल लेन को देखो सब व्हीकल्स को इसी लेन से पास करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है कि वो दूसरा लेन में जाए, राइट। So this lane is single lane is fully utilized by all the vehicles, that's why it is 100% lane distribution, ठीक है। लोड कितना जा रहा है, एक लेन में पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन सपोज ये 2 लेन है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे स्लो मूविंग व्हीकल है, नाउ दिस हैज द अपॉर्चुनिटी, इसको अपॉर्चुनिटी मिला कि ये वाला लेन यूज नहीं करके, इतना पोर्शन यूज नहीं करके वो इतना पोर्शन इस वाले लेन को देगा, तो यहाँ पे जाएगा कुछ लेन, ये यहाँ पे ट्रैवल करेगा, फिर ये अपना लेन में जाएगा, राइट। तो मतलब ये वाला पोर्शन इसने यूज ही नहीं किया, ये वाला व्हीकल ने यूज ही नहीं किया। तो अगर हम बोलेंगे अगर 2 लेन है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली
पूरा व्हीकल्स इसको यूज नहीं कर रहा है, कुछ कुछ व्हीकल से यूज कर रहा है, कुछ कुछ व्हीकल ये वाला लेन को यूज कर रहा है। तो फॉर दिस केस ये वाला लेन का LD तुम्हारा D विल बी लिटिल बिट लेसर देन दिस वैल्यू विच इज कितना 75%, मतलब 0.7। तो जैसे जैसे लेंस बढ़ेगा LDF भी घटता जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, अब नाउ नोट डाउन दिस वैल्यू। सेम है, डुअल कैरेज वे के लिए 2 लेन क्या हो जाएगा 0.75, डुअल कैरेज वे के लिए 3 लेन 60%, यहाँ पे 4 लेन का वहां पे क्या था 40% था फॉर सिंगल कैरेज वे, यहाँ पे 45%, बाकी विल बी सेम। ओके, ये नोट डाउन करो। हो गया? Now there is another factor, see F, this is the VDF, vehicle damage factor का ये वाला फॉर्मूला है। see, please note down this formula VDF का, V1 W1 by WS to the power 4, इसको बोलते हैं फोर्थ पावर लॉ, ठीक है। V2 W2 by WS to the power 4 divided by V1 V2 V3, कुछ नहीं, ये है तुम्हारा नंबर ऑफ व्हीकल्स जिसका करस्पॉन्डिंग वेट कितना है, ये वाला है, ठीक है। अगर बोलेगा 10 से 20 एक्सेल लोड, जिस मतलब जिस व्हीकल्स का, जिन व्हीकल्स का 10 से 20 के रेंज में एक्सेल लोड है, अगर वो 10 टाइम्स जाएगा तो उसका फोर्थ पावर लॉ यहाँ का पुट करने से क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी द एवरेज वैल्यू, मतलब 10 से 20 का जो भी रेंज है उसका एवरेज, ठीक है। तो 10 प्लस 20 बाई 2 करने से कितना होगा 15 दिखेगा यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। अगर सिंगल एक्सेल है तो इट विल बी 8.2 टॉन्स, राइट। अगर ये टॉन में है तो उसको भी टॉन में करना है, केजी में है तो इसको भी केजी में करना है। ओके, सो 8 अगर ये टॉन में है तो दिस विल बी 8.6 टॉन। ओके, 8.26। तो वैसे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पुट कर देना है। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। हो गया? फॉर्मूला लिख लिए तुम लोग? Yes, ma'am. ओके, देखो कभी कभी ये वाला नंबर्स, प्लीज रिमेम्बर ये V क्या है, दिस इज द नंबर। ओके, अब कभी कभी तुमको फ्रीक्वेंसी दे सकता है, तब ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपली फ्रीक्वेंसी इनटू W1 by WS, मतलब W1 रेंज के व्हीकल का फ्रीक्वेंसी कितना है, इतना है, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एक्सेल लोड टू द पावर 4, ठीक है। यही है, इसमें V1 बाय समेशन पूरा, सपोज 10 ठो व्हीकल्स आया, यहाँ पे 5 ठो व्हीकल्स आया, ये वाला सपोज 5 ठो व्हीकल्स आए, तो टोटल व्हीकल्स कितना आया 10 प्लस 5 प्लस 5 20 व्हीकल्स आया। तो यहाँ पे कितना होगा 10 बाई 20, ठीक है। दिस इज व्हाट 5 बाई 20, 5 बाई 20। तो अगर उसको हम फ्रैक्शन में कर देंगे, वही है तुम्हारा ये F1, मतलब 10 बाई 20, 5 बाई 20, 5 बाई 20। एक एग्जांपल देंगे, देन इट विल बी क्लियर। ओके, तो सब हमको यहाँ पे पुट, ओके ओके ओके, तो सब हमको व्हीकल्स यहाँ पे, सॉरी, सब हमको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। F निकल आया, D, A सब निकल आया। ओके, इन मेनी केसेस LSF, दिस इज द लोड सेफ्टी फैक्टर, दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहता एज्यूम इट एज 1। ओके, नाउ सी इन फॉर्मूला, ये जो IRC कोड से हमको जो फॉर्मूला मिला है, दिस इज दैट फॉर्मूला। ओके, कहाँ गया, सी दिस इज द फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है, ये है। यहाँ पे देखो इतना ही है फॉर्मूला, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, आई हैव मल्टीप्लाइड दिस इनटू 10 to the power -6, ठीक है। क्यों किया, तो यहाँ से जो भी आएगा n का यूनिट क्या होना, n का जो भी यूनिट आएगा दैट इज द क्यूमुलेटिव हम लोग निकाल रहे हैं, राइट। किसका क्यूमुलेटिव, स्टैंडर्ड एक्सेल का क्यूमुलेटिव। सो इसका यूनिट क्या है, इतना का, यहाँ से जो भी कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा ये ब्रैकेट के अंदर, दैट विल गिव यू, उसका यूनिट होगा CSA। ओके, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, ठीक है। अब सोचो थ्रू आउट द 20 इयर्स कितना सारा व्हीकल्स काउंट आ जाएगा, बहुत सारा, ठीक है, बहुत, मतलब बहुत डिजिट वाला नंबर एक आएगा, दैट इज योर CSA। अब उसको हमको कन्वर्ट करना है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल को हमको कन्वर्ट करना है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जो भी वैल्यू आएगा जस्ट मल्टीप्लाई दैट इनटू 10 to the power -6,
ठीक है। सपोज यहाँ पे तुम्हारा 3 lakhs या 30 lakhs कुछ एक नंबर आ रहा है, ह्यूज डिजिट का नंबर, ठीक है। तो उसको सिंपली 10⁻⁻6 से करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर MSA, क्योंकि हमको जो भी हम लोग डिजाइन चार्ट्स यूज करेंगे देयर MSA इज गिवन, नॉट द CSA वैल्यू, MSA वैल्यू दिया है। ओके, तो इसीलिए ये वाला चाहिए। ये नोट डाउन करो सब लोग, ये फॉर्मूला किया एवरीवन? Yes, ma'am. सी, अब तुमको n निकल आया, तुमको c तुमको पता है, CBR वैल्यू पता है, नाउ व्हाट टू डू। ओके, तो यहाँ पे हम बोल दिए थे कि कहाँ कहाँ पे तुमको चाहिए। देखो दो तरीका है। एक है कि यू कैन डिटरमाइन टोटल थिकनेस, ओनली टोटल थिकनेस, मतलब कि टॉप सरफेस, हम क्या बोले थे, पेवमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। अब पेवमेंट किसको बोलते हैं? टॉप सरफेस से लेकर सबग्रिड के टॉप लेयर तक को हम लोग पेवमेंट बोलते हैं। मतलब सबग्रिड के ऊपर जितना भी लेयर्स है, अगर हम टोटल थिकनेस ऐड कर देंगे दैट विल गिव यू द पेवमेंट थिकनेस। ठीक है, तो दो तरीका है। एक है कि वी कैन कैलकुलेट ओनली द टोटल थिकनेस, और वी कैन कैलकुलेट टोटल थिकनेस ऑल्सो, along with the total thickness we can calculate individual layer thickness भी। ठीक है, सपोज टॉप में है तुम्हारा wearing कोर्स, फिर आया तुम्हारा बाइंडर कोर्स, फिर आया तुम्हारा बेस कोर्स, फिर आया सब बेस, राइट। तो 4 का ही लेयर का हमको थिकनेस इंडिविजुअली पता रहे चल सकता है, या सिर्फ हमको टोटल थिकनेस, मतलब तुम्हारा वेयरिंग प्लस बाइंडर प्लस बेस प्लस सब बेस मिलाकर टोटल कितना है वो भी आ सकता है, राइट। तो ये वाला जो डिजाइन थिकनेस चार्ट है, इससे हमको सिर्फ टोटल थिकनेस मिलेगा, और जो कैटलॉग है उससे हमको सब कुछ मिलेगा, टोटल थिकनेस तो मिलेगा और इंडिविजुअल लेयर का थिकनेस भी मिलेगा। नाउ दिस इज योर डिजाइन ग्राफ, जो हम लोग बोले थे, ये वाला जो जहां से सिर्फ टोटल थिकनेस मिलेगा, दैट इज द पेवमेंट थिकनेस डिजाइन चार्ट। ओके, इट इज गिवन इन पेज नंबर 8 and 9 ऑफ IRC कोड। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली? बोलो पहले। हाँ मैम। देखो इसमें x एक्सिस में क्या है, x एक्सिस में क्या है, दिस इज द x एक्सिस। x एक्सिस में क्या दिखाई जा रहा है यहाँ पे? डिजाइन ट्रैफिक। व्हाट इज दिस? इन MSA, मतलब ये क्या है? दिस इज कैपिटल N, राइट, जो कि हमको जो बड़ा फॉर्मूला है वहां से कैलकुलेट करना है, राइट। तुम लोग वो कैपिटल N सपोज कैलकुलेट कर चुके, सो वी नो द वैल्यू ऑफ N, मतलब यहाँ से किसी कोई भी एक होता है N का वैल्यू। ठीक है, अब ये y एक्सिस में क्या है? देखो y एक्सिस इज द टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट इन मिलीमीटर, हमको यहाँ से वो टोटल थिकनेस मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारा ग्राफ है, राइट। सो ईच ग्राफ के ऊपर क्या दिया गया है? CBR। देखो CBR 1, CBR 2, 3 ऐसे करके, सॉरी CBR 2, 3, 4, 5 ऐसे करके यहाँ पे 10 तक ये दिया गया है, राइट। तो if you know the value of CBR and if you know the value of N, can we calculate or can we determine the value of total thickness with the help of this chart? अगर तुमको N पता है, ग्राफ तुमको दे दिया, ये ग्राफ विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, तुमको N कैलकुलेट करना है, CBR इज गिवन, तो N तुम कैलकुलेट कर दिए, CBR तुमको पता है। अब ये दोनों डाटा यूज करके तुम क्या थिकनेस निकाल पाओगे यूजिंग दिस ग्राफ? एनीवन? सपोज तुम्हारा n का वैल्यू अगर हम बोलेंगे कैलकुलेट करने के बाद, हम बोलेंगे सपोज n का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा कितना, 6 MSA। ठीक है, 6 MSA आ रहा है, मतलब कि इट विल बी हियर, राइट। और तुमको CBR का वैल्यू, सपोज CBR का वैल्यू दिया है 10, तो कौन सा कर्व यूज करेंगे हम? ये वाला, राइट। ये वाला क्या है? CBR का वैल्यू है 10, राइट। तो CBR का वैल्यू तुमको 10 दिया है, सो वी हैव टू यूज दिस ग्राफ, राइट। इतना सारा ग्राफ में से ये वाला ग्राफ हमको चाहिए, तो क्या करेंगे? अब 6 का वैल्यू, n का वैल्यू, n इज 6, तो n इक्वल्स टू 6 के लिए तुम परपेंडिकुलरली ऊपर जाओ 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 जाओ। ठीक है, जाके जो CBR वैल्यू दिया है उसको कट करो, इंटरसेक्ट करो। तो हम लोग को क्वेश्चन में सपोज CBR का वैल्यू दिया है 10, तो हम लोग सिर्फ कौन सा ग्राफ यूज करेंगे? वी विल यूज दिस ग्राफ। देखो CBR 10 ये ग्राफ है, राइट। अब यहाँ पे स्टॉप कर दो,
यहाँ पे तुमने स्टॉप कर दिया, ठीक है, अपना ग्राफ। करके अब कहाँ पे जाना है, हमको टोटल थिकनेस चाहिए, तो विच एक्सिस वी हैव टू गो, किस तरफ जाना पड़ेगा? अब ये वाला, ये एरो किस तरफ जाएगा? पेवमेंट थिकनेस किस तरफ मिल रहा है, कौन सा एक्सिस में मिल रहा है पेवमेंट थिकनेस? लेफ्ट Yes. लेफ्ट लेफ्ट Left. साइड तो में। अब वी विल मूव दिस साइड, ओके। करते 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 तुम जाओ, ये अच्छे तरह से नहीं हुआ है, जो भी है, मतलब तुम लोग करना है, तुम लोग को करना है ऐसे। अब देखो यहाँ से तुमको कैलकुलेट करना है कि कितना है तुम्हारा पेवमेंट थिकनेस। तो सपोज ये वाला हम बोलेंगे 400, इसको अगर 10 भाग में कर देंगे तो वी विल गेटिंग दिस वन, तो इसको हम बोलेंगे 440 अप्रोक्सीमेटली। फॉर दिस केस आवर डिजाइन थिकनेस इज हाउ मच? 440 mm, जिसका m का n का वैल्यू है 6 ms है और CBR का वैल्यू है 10, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा n का वैल्यू अगर 8 आया, तो ये डायग्राम देखकर हमको बोलो, तो कोई भी देखकर जस्ट ऐसे ही, ठीक है। सपोज योर MSA n का वैल्यू है 8, ओके, एंड योर क्या बोलते हैं उसका, CBR इज 7, तो थिकनेस कितना आना चाहिए देखकर बोल सकते हो, ऐसे एस्टिमेट, मतलब अप्रोक्सीमेटली। योर n इज, आई सेड योर n इज 8 MSA, ठीक है, एंड योर CBR इज 7, CBR है तुम्हारा 7, ठीक है, 8 MSA, CBR इज 7। मैम 500 to 600 के बीच में। 500 टू, यस, वेरी गुड। देखो 8 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से तुम जाओ जाओ जाओ, कौन सा में जाएगा? ये 7 इसमें जाएगा, Yes, ठीक है, ma'am. यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ से तुमको इस तरफ जाना है, सॉरी डायग्राम ऐसे ऐसे स्ट्रेट करके जाओ, तो इट विल बी समवेयर इन मिडल। अब वो तुमको चार्ट फॉलो करके करना है, एग्जैक्ट कितना होगा, तो ये विल बी 550 mm। क्लियर कैसे यूज करना Yes, है? ma'am. Yes. ओके, तो फिर आई थिंक दिस इज क्लियर। तो यहाँ से क्या मिलेगा? वी आर गेटिंग टोटल थिकनेस। अब हमको इंडिविजुअल थिकनेस यहाँ से नहीं मिल रहा है, ओके। तो इंडिविजुअल थिकनेस के लिए हमको क्या करना है? वी हैव टू फॉलो पेवमेंट डिजाइन कैटलॉग, ठीक है, पेवमेंट डिजाइन कैटलॉग विच इज गिवन इन पेज 21 से लेकर 37, ओके। कैसा होगा दिखने में? इट विल लुक लाइक दिस, देखो ऐसा होगा दिखने में, ओके। पेवमेंट कैटलॉग विल बी लुकिंग लाइक दिस। अब पेज हम लोग देखो, उसमें सिर्फ एक ही कैटलॉग नहीं होगा, बहुत सारा कैटलॉग होगा। तो दिस आर द कैटलॉग्स, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज 21 से, ठीक है। देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। दिस प्लेट इज रिकमेंडेड फॉर डिजाइन ऑफ ट्रैफिक रेंज कितना है? 1 to 10 MSA। तो पहले तुमको देखना है तुम्हारा MSA कितना में राय करा है, विद इन 10 है या अबव 10 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखना है? CBR वैल्यू देखना है जो दिया जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो विद इन तुम्हारा सपोज 10 MSA के अंदर में है तो वी कैन यूज दिस चार्ट, लेकिन तुम्हारा CBR इज नॉट 2%, तो वी कांट यूज दिस चार्ट, ओके। सपोज तुम्हारा CBR है 4%, तो कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे, Yes, ma'am. ये यूज कर सकेंगे हम। देखो हम लोग का बोले थे n का वैल्यू है सपोज 9 MSA, ठीक है, एंड CBR इज 4, सो कैन वी यूज दिस प्लेट? ये पूरा एक ही है, एक ही प्लेट है। देखो इसका प्लेट का ट्रैफिक का रेंज कितना है? n का वैल्यू इट शुड बी बिटवीन 1 to 10, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग का 9 MSA, ओके। लेकिन CBR कितना है? 3 है, सो वी कांट यूज दिस प्लेट, ओके। Yes, अब ma'am. नेक्स्ट प्लेट में जाएंगे, देखो ये 1 to 10 MSA, ओके, 9 MSA था हम लोग का। अब CBR कितना है? 4%, और हम लोग को बोला गया है, हम लोग का क्वेश्चन में दिया है CBR इज 4%। नाउ वी हैव टू यूज दिस प्लेट, ओके, सो वी कैन यूज दिस प्लेट, ठीक है। अब तुम लोग का देखो यहाँ पे चार्ट से, इसमें देखो हम लोग का बोला है कितना है? 9 MSA है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम्हारा MSA का वैल्यू ट्रैफिक 1, अगर तुम्हारा 10 MSA होता तो उसका टोटल थिकनेस कितना होता? 700 mm, ठीक है। और इंडिविजुअल का ये वाला देखो, टॉप वियरिंग कोर्स का है 40 mm, फिर उसके नीचे जो बाइंडर कोर्स है उसका होगा 80 mm, ठीक है। फिर उसके नीचे जो बेस कोर्स है उसका होगा 250 mm, और उसके नीचे जो सब बेस होगा उसका थिकनेस विल बी 330 mm। तो टोटल ऐड करो, वी आर गेटिंग 700 mm ओनली, ठीक है।
लेकिन Yes. हम लोग का कहाँ पे है, हम लोग का 9 में है, आवर n वैल्यू इज 9 नॉट 10, तो कैन वी टेक दिस वैल्यू? तो 9 MSA और 10 MSA के लिए ये सब थिकनेस सेम रहेगा? कौन से ऐसे बोलो, इन जनरल बोलो, तुम्हारा सपोज 9 गाड़ी आ रहा है और 10 गाड़ी आ रहा है, तो दोनों का थिकनेस क्या सेम देना पड़ेगा हमको? No, ma'am. नहीं, जिसका 9 गाड़ी आ रहा है उसका ऑब्वियसली थिकनेस थोड़ा क्या होगा, कम होगा ना ज्यादा कम होगा? होगा। 10 कम होगा, राइट? कम होगा। अगर तुम 9 है तुम्हारा, लेकिन तुम 10 पकड़ के इतना सारा करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, राइट? उतना हमको जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको इसको इंटरपोलेट करके 9 के लिए कितना है वो निकालना है। सपोज 5 और 10 के बीच में वो 9 लाई करता है, तो इन दोनों को इंटरपोलेट करके इसका भी वैल्यू, इन दोनों के बीच का वैल्यू निकाल लो। 9 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा ये वैल्यू, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इंटरपोलेशन करना है, सिंपल, क्लियर? तो यहाँ से हमको Yes, ma'am. 9 mm से इंडिविजुअल लेयर भी निकल आएगा और टोटल थिकनेस भी निकल आएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर फंडा, राइट? अब Yes, हम ma'am. लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर, राइट? तो सबसे पहले f कैलकुलेट करना सीखते हैं। ओके, हाउ टू कैलकुलेट दिस f वैल्यू, वीडियो बाकी बोलो, बाकी सब तुम लोग को दिया रहेगा या क्राइटेरिया दिया रहेगा, उसके अनुसार हमको d का वैल्यू चाहिए, ठीक है? ये डुअल कैरेज वे है या सिंगल कैरेज वे है, ये a का वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगा या p देगा, उससे a का वैल्यू निकालना है। लेकिन f का वैल्यू समटाइम दे विल गिव यू और समटाइम दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट। ओके, तो सपोज f का हम लोग फॉर्मूला लिखे हो ना सब लोग? Yes, ma'am. फॉर्मूला, हाँ, Yes, ma'am. नाउ सपोज दिस इज द क्वेश्चन, f के लिए ये वाला यही f आज का नियम है। हाँ हाँ देखो यही है, कर स्टार्ट करो। सी ये वाला है तुम्हारा कैलकुलेशन, ओके, सॉरी प्रॉब्लम है, क्या गया है? फ्रॉम एक्सेल लोड सर्वे फॉलोइंग डाटा हैज बीन फाउंड फॉर सिंगल एक्सेल लोड कॉन्फ़िगरेशन। प्लीज रिमेंबर दिस वन, ये क्यों लगेगा हम बोलेंगे, सिंगल एक्सेल बोला गया है, ठीक है? तो सिंगल सब जो भी आ रहा है वो सब कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन वाला लोड है, ठीक है? तो एक्सेल लोड रेंज कितना है देखो, 17 से 15 है, मतलब किसमें है, टॉन में है, ठीक है? तो इतना वाला रेंज का एक्सेल लोड जो कैरी कर रहा है व्हीकल्स, वो कितना फ्रीक्वेंसी है उसका, 4%। ओके, सो एफ का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0.04, सो F1 इज 0.04, ठीक है? अब 15 से 13 रेंज वाला कितना परसेंटेज, मतलब कितना टाइम्स आ रहा है, 19 टाइम्स आ रहा है। अगर टोटल 100 व्हीकल्स आ रहा है तो उसमें बोला है कि इस वाले रेंज का व्हीकल्स कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। इस वाले टाइप का व्हीकल्स कितना बार आ रहा है, 19 बार आ रहा है, ठीक है? और इस रेंज का व्हीकल्स कितना बार आ रहा है, 24 टाइम्स आ रहा है, ठीक है? एज आई सेड दिस आर द फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी को हमको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। सो F1 F2 विल बी दिस वन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। और वो वाला फॉर्मूला में हम क्या बोले थे, इन दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है देखो फ्रीक्वेंसी वाला दिया है, तो वी हैव टू यूज दिस वाला फॉर्मूला, जो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला था, ये वाला, ठीक है? तो F1 F2 F3 ऑल आर गिवन, ठीक है? W1 क्या होगा, W1 हम बोले थे दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द एक्सेल लोड ग्रुप, ठीक है? तो फर्स्ट लोड ग्रुप कितना था, 17 से 15 था, रेंज कितना है, 17 से 15। सो व्हाट इज द मीन, मीन मतलब एवरेज क्या होगा, 17 प्लस 15/2, ठीक है, मतलब 16 होगा। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, ये 0.04 इंटू 16 टॉन्स है, राइट? तो 16 टॉन्स डिवाइड बाय, ऑब्वियसली नीचे भी टॉन्स ही होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कितना हो जाएगा, सिंगल एक्सेल बोला है, क्वेश्चन में सिंगल एक्सेल बोल दिया है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्सेल लोड फॉर सिंगल एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, कितना टर्न होना चाहिए सिंगल? 8.2. हाँ, यस, 8.2 टर्न्स, राइट? अगर ये केजी में होता तो उसको केजी में लिखना पड़ता है, राइट? तो ये Yes, ma'am. 8.2 टर्न्स टू द पावर 4 करके, ये वाला जो भी फॉर्मूला है इसमें VDF का वैल्यू जो भी है पुट करके निकालो कितना आ रहा है, कैलकुलेट एंड टेल मी। दिस इज द क्वेश्चन, ओके, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन। Yes, ma'am. देखो ये क्वेश्चन है, ये देखो W1 क्या बोले थे हम, दोनों का मीन, मतलब 17 प्लस 15/2, ये एक्सेल लोड रेंज या एक्सेल लोड ग्रुप, उसका मीन वैल्यू कितना है, 13 प्लस 15/2, 40। पुट करो और बोलो।
कितना आएगा? देखो यहाँ पे, देखो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। whereas WS is 8.2 टॉन्स, क्योंकि ये सब टॉन्स में है, राइट? तो इसका टॉन्स में हम लिखेंगे WS का वैल्यू। देखो पुट करोगे यहाँ पे 0.04 16/8.2 टू द पावर 4, ठीक है। ये वाला है 0.19 W2 is 14/8.2 to the power 4, तो ये आ रहा है 4.233 सबका। कर रहे हैं मैम। मैम 4.233। हाँ, 4.233। ओके, गुड, वेरी गुड। क्लियर है ना ये वाला वीडियो कैसे Yes, करना? ma'am. अगर नहीं दिया रहेगा तो ठीक है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सम। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, अ 2 लेन सिंगल कैरेज वे, ठीक है। ये डी का वैल्यू निकालने के में काम आएगा। 2 लेन सिंगल कैरेज वे, ठीक है, इज टू बी डिजाइन फॉर अ डिजाइन पीरियड ऑफ 15 इयर्स, मतलब स्मॉल m है कितना, 15 इयर्स। Total two-way traffic intensity is in the year of completion of the construction is 2000 CVPD। ये क्या है, A होगा कि P होगा? Traffic count in the year of completion of the construction, मतलब after construction। सपोज आज तुम 2020 में स्टार्ट किए, इसका ईयर ऑफ कंप्लीशन है 2023, ठीक है। सो इन दैट ईयर, मतलब ईयर ऑफ कंप्लीशन कौन सा है, 2023 है, तो इन दैट ईयर तुम्हारा ट्रैफिक काउंट कितना है, 2000 CVPD है। सो ये A है कि P है? A is what? A is after construction, P is before construction। इतना याद रखो, A से क्या है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन का जो ट्रैफिक है, मतलब इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रैफिक। तो ये क्या है, दिस इज A, ठीक है, क्लियर। एंड व्हीकल डैमेज फैक्टर इज 3 दिया गया है, F का वैल्यू भी दिया है, ठीक है। तो तुमको 2 लेन सिंगल कैरेज वे हम बोले थे कितना होगा, सिंगल कैरेज वे 1 लेन का होता है 100%, 1 सिंगल कैरेज वे 2 लेन का होता है 75%। सो योर D इज व्हाट, D विल बी 75%, which is 0.75, ठीक है। एंड R अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो assume it as 7.5%। R is what, traffic growth rate, ओके। तो बोला गया है कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक इन MSA, ठीक है, MSA में तुमको निकालना है। सो प्लीज नोट डाउन क्या क्या है। N इक्वल्स टू है 15 इयर्स, ठीक है। व्हीकल डैमेज फैक्टर F इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। ये क्या है, ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन, मतलब आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दैट इज A is how much, 2000 CVPD, ओके। R is 7.5%, traffic growth rate is 7.5%, and for this case single carriage way 2 लेन का ये तो दिया गया है, अगर नहीं दिया रहता तो we have to assume it as D equals to 75%, which is 0.75। now use this formula, कैपिटल N इक्वल्स टू ये जो फॉर्मूला है इसमें बिठाओ। LSF नहीं दिया है, सो कंसिडर इट एज 1। पहले ये जो है, ये वाला बॉर्डर वाला मल्टीप्लाई किए बिना ही निकालो तो कितना आएगा, दैट विल बी, यूनिट विल बी, जो भी वैल्यू आएगा CSA, दैट मस्ट CHA, ठीक है, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। तो कितना आ रहा है, A कितना है, A इज 2000 CVPD, उसमें ही रखो। D कितना है, दैट इज 75%, 2 लेन सिंगल कैरेज वे 2 लेन है 75%, सो 0.75, ओके। F इज गिवन, मतलब VDF गिवन है कितना है 3, LSF नॉट गिवन, एज्यूम इट एज 1, और R इज 7.5%, विच इज 0.7075, और N है तुम्हारा डिजाइन लाइफ, विच इज 15 इयर्स।
तो कितना आएगा n का वैल्यू? ये फॉर्मूला नोट डाउन किए हो? यस मैम, कर रहे हैं। देखो एक बहुत ह्यूज वैल्यू है। अब ये वाला देखो, ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसको निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के साथ मल्टीप्लाई करना। सी दिस वन इज इन ब्रैकेट, ठीक है, मतलब 1 + r⁻n-1 वो एक ब्रैकेट में है, उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। ओके, देखो जो भी ये वाला से आएगा दैट विल गिव यू क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल CSA, ठीक है, लेकिन हमको MSA में चाहिए, तो इसलिए हम लोग जो भी बड़ा वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से। देखो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू सब कुछ, कितना MSA आएगा? $42.89 आ रहा है। Yes, ma'am. 42.899. हाँ ठीक है, इतना MSA। ओके, यस मैम। सो तुमको n का वैल्यू कैलकुलेट हो गया है। अगर इसमें CBR भी दे देता तो क्या होता, तुमको बोलता डिजाइन करने, वही सिमिलर प्रॉब्लम ये वाला है, ये वाला हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, कंसीडर इट एज योर क्लास वर्क, ओके, या होमवर्क भी बोल सकते हो, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करो, लेकिन फिलहाल ये जो प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे वो वाला सबमिट करना है। सबमिट कर दो। ओके मैम, ओके हाँ, मैम। थोड़ा रुको, ये 1 मिनट है, अभी ये बता देते कि क्या करना है इसमें। सी सब कुछ दिया है, बोला डिजाइन द पेवमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू नेशनल हाईवे। देखो ये नेशनल हाईवे क्यों दिया है, यहाँ पे एन डिजाइन लाइफ नहीं दिया रहेगा, सो IRC कोड से तुमको डिजाइन लाइफ निकालना है फॉर नेशनल हाईवे कितना है, ठीक है, एन का वैल्यू, ठीक है। 2 लेन सिंगल कैरेज वे, इससे क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू आएगा यूजिंग IRC कोड 37, ठीक है। ट्रैफिक काउंट एज पर लास्ट काउंट, मतलब ये क्या है, बिफोर कंस्ट्रक्शन, सो दिस इज योर कैपिटल P। अब इसके लिए तुमको कैपिटल A निकालना है, ओके, और VDF गिवन, CBR गिवन है, तो तुमको क्या निकालना है, N निकालना है CBR यूज करके, एंड यूजिंग द फॉलोइंग चार्ट्स, ये सब चार्ट करके टोटल थिकनेस एंड इंडिविजुअल थिकनेस निकालना है, ओके। तो ये वाला देख लेना है, और डाउट होने से हमको पूछना है, ओके। ओके मैम। इज इट क्लियर कैसे करना है? यस मैम, यस मैम। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ 50 10। मैम दोनों ही मैट्रिक्स सबमिट कर दो। हाँ हाँ, ओके मैम। ओके देन, थैंक यू। Thank प्लीज you. गो थ्रू द लास्ट प्रॉब्लम एवरीवन, लास्ट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ओके। ओके। ओके ठीक है, लीव कर सकते हो। थैंक यू मैम। next time.